Hello friends, I'm Professor Wayam Khan and today we are going to start a new topic in our subject Project Management and Operations Research. That topic is sequencing models, and this is the first part of this sequencing model series, and today we will be discussing theoretical part of this sequencing models. Now before going to the sequencing model, I'll request you to subscribe to my channel, that is YMK streaming now, and please like the video and share it. Do click the bell icon, and please watch the previous videos as well. Now we will begin our sequencing model, and the part that we are going to cover today is some general terms and the introduction about the sequencing problem. Okay, now when I say sequencing model or a sequencing problem, it involves finding an optimal order. We have to find a particular order in a way that will increase the, you can say, that will reduce the total time required for completing this job. Okay, for completing these jobs, the sequencing problem generally involves the finding an optimal order or a sequence of performing a series of job. Okay, there will be some jobs given to you, and these jobs need to be performed on different machines. Now we have to find a particular order of performing these jobs. Okay, there will be a particular order that will reduce the total time required to complete these jobs, or that will reduce the cost to perform these jobs. Okay, and that will increase our profit. Okay, a series of job by a number of facilities, this will be arranged in a specific order. Now the effectiveness here is a function of the order or sequence in which the tasks are performed. Now when will you say the sequencing problem is effective? It will be said effective if the order or sequence in which the tasks are performed properly. If the tasks are performed properly, or the sequence is defined in a way that it will reduce the total time required for operation, at that time it will be said that the sequencing problem are performed effectively. Okay, that's why the effectiveness is a function of the order or sequence in which the tasks are performed. Okay, now there are various optimality criterias. Okay, there are various optimality criterias, and these criterias are based on minimizing. Okay, so we will be going to minimize the following things so as to optimize our sequence. Okay, so as to optimize our sequence, or so as to improve our quality, or you can say our productivity, or you can say our profit. Okay, so first is minimizing total elapsed time. Now this total elapsed time is also called as make span. Make span is nothing but the job, first job when it is started, up to the last job that is completed. Okay, जो जॉब शुरू हुआ है, पहला जॉब जब से शुरू हुआ है वहाँ से लेके जो हमारा जॉब आखिरी जॉब कंप्लीट हो रहा है, उस टाइम को हम बोलते हैं टोटल इलैप्स्ड टाइम, या फिर मेक स्पैन, जो जिसमें जॉब बन रहे हैं. ओके, दूसरा है हमारा मीन फ्लो टाइम. मीन टाइम इन अ जॉब शॉप, एक जॉब कितना टाइम स्पेंड कर रहा है एक शॉप में. उसके बाद में है आइडियल टाइम ऑफ मशीन, मशीन कितने देर तक आइडियल थी. ओके, सो these things need to be minimized. These things are to be minimized. Then there is the fourth criteria, minimizing total tardiness. If lateness is positive, it is termed as tardiness. So reducing the tardiness or lateness of the job, we will minimize the time required, and hence we will improve the quality and the time, the quality and the profit. Okay,
then minimizing number of tardy jobs, late jobs are to be reduced. ओके जितने लेट जॉब होंगे उतना ज़्यादा वक्त लगेगा, उतना आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी. इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट, इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट को भी हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है. और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ बीइंग लेट को भी हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है. ओके सो ये क्राइटेरिया है हमारे ऑप्टिमैलिटी के इन अ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम. ओके अगर ये चीज़ें मिनिमाइज होती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है या जो भी जॉब है वो क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है. ओके तो इसमें से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो है टोटल इलैप्स टाइम, मीन फ्लो टाइम, आइडल टाइम ऑन मशीन. ये काफ़ी हम इन चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं हमारे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में. ओके अगला है हमारा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का डेफिनेशन. अभी आपको बहुत बड़ी डेफिनेशन यहाँ पर नज़र आ रही होगी, बट हमको इतनी सारी जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी हर बार ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है हमको. सपोज़ देर आर एन जॉब्स, सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में नंबर ऑफ जॉब्स है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ईच ऑफ विच हैज़ टू बी प्रोसेस्ड वन एट ए टाइम, जिनको हमको एट ए टाइम एक ही जॉब क्या करना है, प्रोसेस करना है. ओके ऑन एम मशीन्स, हमारे पास में नंबर ऑफ मशीन्स है एम मशीन्स, जिनको हमने ABCD अप टू सो ऑन ऐसा नाम दिया है. द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ईच जॉब थ्रू द मशीन्स इज़ गिवन. हमको जो जॉब का ऑर्डर है, मतलब अगर मेरे पास में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 जॉब हैं, तो ये 5 जॉब कौन से मशीन पर किस सीक्वेंस में प्रोसेस करना है ये हमको यहाँ पर बताया गया है. ओके जैसे कि जॉब A है तो जॉब 1 है तो इसको हम प्रोसेस करने वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्वेंस में, और वो सीक्वेंस है ACB. मतलब पहला जॉब किस पर जाएगा, पहली बार वो जॉब किस मशीन पर जाएगा, मशीन A पे, फिर वो जॉब जाएगा मशीन C पे, मशीन B पे आखिरी में. ओके इस तरीके से 3 मशीन के ऊपर उस जॉब को प्रोसेस करना है. ये हमारा ऑर्डर हो गया. ओके इसको बोलते हैं सीक्वेंस. ओके एक जॉब मशीन पर कौन से सीक्वेंस में जाने वाला है. अब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब एट ईच मशीन इज़ ऑल्सो गिवन. एक मशीन पर उस जॉब को कितना वक्त लगेगा ये हमको दिया गया है. ओके द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड अमंग n फैक्टोरियल रेज टू m नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस. हमको जितने भी पॉसिबल सीक्वेंस है या जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है इस ACB के या फिर ABC के, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे सीक्वेंस के, वो हमको क्या करना है, ट्राई करना है. ट्राई करना है बोलने के बजाय उसमें से बेस्ट वाला जो सीक्वेंस है वो हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में कुछ क्राइटेरिया है, वो आगे हम जाके स्टडी करेंगे. ओके सो अभी वो हमको उसके ऊपर जोर नहीं देना है, हमको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, डेफिनेशन के हद तक नंबर ऑफ़ जॉब्स है, नंबर ऑफ़ मशीन्स है, इन मशीन्स के ऊपर हर एक जॉब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जा रहा है. ओके इतना ही अभी फ़िलहाल डेफिनेशन के हद तक हमको ध्यान में रखना है. ओके आगे क्या दिया है, द सीक्वेंसेस और कॉम्बिनेशन दैट सीक्वेंस और ऑर्डर फॉर प्रोसेसिंग द जॉब सो दैट द टोटल इलैप्स टाइम फॉर ऑल जॉब्स विल बी मिनिमम. और वो स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक सीक्वेंस इन मशीन्स के ऊपर जॉब को भेजने का जो भी रहेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टोटल इलैप्स टाइम है, टोटल टाइम जो लगने वाला है हमको, मेक स्पैन जो लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा. और उसको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं. AI मतलब क्या है, टाइम फॉर ith जॉब ऑन मशीन A. मतलब I नंबर का जो जॉब है, ओके नंबर 1 अगर जॉब है तो वो A1 रहेगा, नंबर 2 अगर जॉब है तो वो A2 रहेगा, और वो अगर मशीन A पर है तो उसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे. उसी तरीके से BI मतलब क्या है, टाइम फॉर ith जॉब ऑन मशीन B. मतलब अगर मशीन B पे फर्स्ट जॉब है, मतलब नंबर 1 का जॉब है तो उसको हम B1 बोलेंगे, नंबर 2 जॉब है तो उसको B2 बोलेंगे एंड सो ऑन. और T क्या है, टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट जॉब टू कंप्लीट ऑफ द लास्ट जॉब. मतलब ये हमारा इलैप्स्ड टाइम है जो स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, पहला जॉब जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेके
जॉब जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक का ये क्या है, हमारा टाइम है. वी विश टू डिटरमाइन फॉर ईच मशीन अ सीक्वेंस I1 I2 up to so on, where I1 I2 up to so on is a permutation of integers 1 to up to n, which will minimize total elapsed time t. हमको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या करना है, ढूंढना है. यह है डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन से हमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, हमको आगे जो मेथड्स है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो वी विल नॉट पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन you can say the definition part. Okay, but this one is important. These terms are going to be continuously used in your sequencing problem, so that's why we need to clarify the basic terminology and notations of sequencing model. Number of machines. Now here, number of machines, what is the meaning of number of machine? It means service facilities, okay, through which a job must pass. जो सर्विस फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन का मतलब क्या रहेगा, जो भी सर्विस फैसिलिटी है, ओके, वो सभी सर्विस फैसिलिटी जिसमें से जॉब पास होने वाला है, फिर वो पैकेजिंग वाला रहो या फिर इंस्पेक्शन रहो या जो भी चीज़ें रहो, इन सब में से जब जॉब जाएगा तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ मशीन कंसिडर करेंगे. जॉब मस्ट पास बिफोर इट्स कंप्लीटेड, ओके, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है. जैसे कि एक मिल्क प्लांट है, मिल्क प्लांट में मिल्क क्या होता है, पैक्ड होता है पाउचेस में और उसको प्रोसेस किया जाता है बॉइलिंग से, कुकिंग से, पैकेजिंग से, एट्सेट्रा से, बराबर है. इन दिस मिल्क पैकेजिंग पाउचेस कंस्टिट्यूट्स द जॉब एंड वेरियस प्रोसेसेस कंस्टिट्यूट द नंबर ऑफ मशीन्स. इसके अंदर जो पैकेजिंग का पार्ट है, मतलब दूध को पैकेट में पैक करने का जो पार्ट है, वो है हो गया हमारा जॉब, वो है हमारा जॉब. और ये जॉब करने के लिए जो अलग अलग प्रोसेसेस से ये सब चीज़ें पास हो रही हैं, जैसे कि बॉइलिंग हो रहा है पहले, फिर कूलिंग हो रहा है, फिर पैकेजिंग हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये है हमारी नंबर ऑफ मशीन्स. ओके, उसके बाद है प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग टाइम, इट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब ऑन ए मशीन. एक मशीन के ऊपर उसको कितना वक्त कंप्लीशन को लगता है, मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट होने को एक मशीन पर, एक जॉब को कितना वक्त लगता है, इसको बोलते हैं उस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम. इट इज़ डिनोटेड बाय TIJ, विच मीन्स प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर ith मशीन. ith मशीन के ऊपर जो प्रोसेसिंग टाइम है J नंबर की जॉब को, वो रहेगा हमारा TIJ. इसके बाद है प्रोसेसिंग ऑर्डर. प्रोसेसिंग ऑर्डर मतलब किस सीक्वेंस में जॉब को कंप्लीट करना है, इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग ऑर्डर. इट रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच वेरियस मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब. ओके, इसके बाद में और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. आइडल टाइम ऑन ए मशीन. दिस इज द टाइम ऑन ए मशीन रिमेन्स आइडल ड्यूरिंग द टोटल इलैप्स टाइम. मतलब जो पहला जॉब शुरू हुआ, यहाँ से लेके आखिरी जॉब जब ख़त्म हो रहा है, तो तब तक मशीन कितने देर तक खाली रही है, इसको बोलते हैं आइडल टाइम ऑन ए मशीन. लेट XIJ डिनोट द आइडल टाइम ऑफ अ मशीन J between the end of I minus ith job and the start of ith job. Okay, now total elapsed time, इसको हम T से डिनोट करते हैं. दिस विल बी डिनोटेड बाय T. दिस इज द टाइम बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब, इंक्लूडिंग ऑल आइडल टाइम. अगर कुछ आइडल टाइम है तो वो भी इसके अंदर पकड़ा जाएगा. जैसे अगर एक जॉब हमारा शुरू हो गया है और ये जॉब ख़त्म हो गया है, इसके बाद दूसरा जॉब शुरू हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, पर तीसरे जॉब के वक्त मशीन थोड़ी देर तक आइडल थी और फिर तीसरा जॉब शुरू हुआ और वो आखिरी में ख़त्म हो गया. तो ये जो पहले जॉब से आखिरी जॉब का ख़त्म होने का टाइम प्लस जब तक वो मशीन आइडल थी, ये टाइम मिलाकर होता है हमारा टोटल इलैप्स्ड टाइम, या इसको बोलते हैं मेक स्पैन. ओके, और आखिरी वाला पार्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी का वो है इट नो पासिंग रूल. नो पासिंग रूल मतलब क्या, एक बार हमने ऑर्डर डिफाइन कर लिया, मतलब ऑपरेशन का सीक्वेंस हमने एक बार डिफाइन कर लिया. जैसे अगर दो मशीन के ऊपर जॉब होने वाला है तो हमने मशीन का जो सीक्वेंस है या जो जॉब का सीक्वेंस है वो अगर बना लिया, मतलब फॉर एग्जांपल A और B मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर ऑर्डर हमने डिफाइन कर लिया है A B, मतलब पहला जो भी जॉब रहेगा वो पहले मशीन A पर जाएगा और उसके बाद मशीन
बी पर जाएगा। तो ये रूल एक बार डिफाइन हो गया तो हम इस रूल को किसी भी तरीके से क्या चेंज नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं नो पासिंग रूल। इट मीन्स दैट पासिंग इज नॉट अलाउड, दैट इज सेम ऑर्डर ऑफ जॉब इज मेंटेन्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला जॉब आया तो आपने सीक्वेंस ए बी रखा और दूसरा जॉब आया तो सीक्वेंस बी ए रख दिया। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज नो पासिंग रूल। कुछ केसेस है सीक्वेंसिंग मॉडल के, एंड दीज केसेस आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। ये केसेस में से हम बहुत सारी केसेस स्टडी करने वाले हैं। ये 5 केसेस हैं हमारे पास में। इसमें से पहला केस है कि हमारे पास में रह सकते हैं नंबर ऑफ जॉब्स। n जॉब्स विल बी देयर एंड देयर विल बी ओनली वन मशीन ए। हमारे पास में नंबर ऑफ जॉब्स रहेंगे और मशीन एक ही रहेगी, ऐसा हमको कंडीशन दिया जा सकता है। और इसमें आपको बोला जा सकता है कि सीक्वेंस मशीन का लगाओ और जॉब का सीक्वेंस लगाओ और हमारा टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें फाइंड आउट करो। ओके, ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके लिए हम ये पार्ट स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसके लिए हम वो यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं। उसके बाद है सेकेंड टाइप, n जॉब्स एंड 2 मशीन्स ए एंड बी। मतलब नंबर ऑफ जॉब है आपके पास में 1 2 3 4 5, और ये 5 जॉब कितने मशीन्स पर हो रहे हैं, तो 2 मशीन के ऊपर प्रोसेस हो रहे हैं। और हमको बोला जा सकता है कि फाइंड द सीक्वेंस, या फिर ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करो, टोटल इलैप्स टाइम फाइंड करो, आइडल टाइम फाइंड करो, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें रहेगी वो हमको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद में रहेगा थर्ड टाइप, n जॉब्स एंड 3 मशीन्स। हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स रहेंगे और हमारे पास में अभी कितने मशीन्स हैं, 3 मशीन्स हैं, 3 अलग अलग मशीन्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। और एक टाइप है चौथा, 2 जॉब्स रहेंगे और नंबर ऑफ मशीन्स रहेंगी, से A B C D E F, मतलब ये 4-5 मशीन्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, बट हमारे जॉब्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही जॉब हैं। और सबसे आखिरी वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, केस है, और ये कई बार पूछा गया है पेपर्स में, ये है हमारा n जॉब्स एंड m मशीन। मतलब नंबर ऑफ जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स रहेंगे और बहुत सारे मशीन्स रहेंगे, से A B C D नंबर के मशीन से और 1 2 3 4 5 नंबर के हमारे पास में जॉब्स हैं। सो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, सो इसको हम एक एक 1 बाय 1 ये हम स्टडी करेंगे, बट बिफोर स्टडिंग दैट विल सी विच आर द डिफरेंट assumptions of sequencing problem, and these assumptions are to be रिमेंबर्ड एवरी टाइम यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आपको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तब आपको ये अजम्पशंस ध्यान में रख के ही प्रॉब्लम क्या करना है, सॉल्व करना है। सो पहला अजम्पशन है, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 ऑपरेशन एट ए टाइम। एक मशीन पर एट ए टाइम सिर्फ एक ही जॉब होगा। ओके, किसी भी मशीन पर एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन होने वाला है, एक ही ऑपरेशन होगा। ये सबसे पहला और बेसिक अजम्पशन है। ओके, कितने भी मशीन्स रहने दो, A B C D E F कितने भी मशीन्स रहेंगे, बट इन मशीन्स पर एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन होने वाला है, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, ये एजम्पशंस हमको बेस देते हैं हमारे ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए या हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसा रहेगा, इसका बेस हमको इन अजम्पशंस पे से मिलता है। ओके, इसके बाद में है दूसरा assumption, each job once started on a machine is to be performed up to its completion on that machine। एक जॉब मशीन पर उसका ऑपरेशन शुरू हो गया तो वो तब तक वहाँ से मूव नहीं होगा जब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता। मतलब जॉब शुरू हो गया है एक मशीन पर और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई भी दूसरा जॉब वहाँ पर हम लगाने वाले नहीं हैं। ओके, जब तक एक जॉब चल रहा है तब तक वो चलेगा, जैसे ही वो कंप्लीट होगा फिर दूसरा जॉब वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। एन ऑपरेशन मस्ट बी completed बिफोर इट्स सक्सीडिंग ऑपरेशन बिगिनस। कोई भी मशीन पर एक ऑपरेशन जब तक चल रहा है तब तक दूसरा ऑपरेशन उसके ऊपर हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, जो पहला ऑपरेशन होगा उसके बाद फिर हम सेकंड या सक्सीडिंग ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, शुरू करेंगे। इसके बाद में है
द टाइम इंटरवल्स फॉर प्रोसेसिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म। इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब एक जॉब का एक मशीन के ऊपर प्रोसेसिंग टाइम रहता है, बराबर है, हमने देखा था डेफिनेशन स्टार्टिंग में। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये इंडिपेंडेंट है उनके ऑर्डर पर। मतलब अगर मैं बोलता हूँ जॉब 1 है जो कि मशीन ए पर 10 मिनट लेता है, ओके, मशीन बी पर 20 मिनट्स लेता है और मशीन सी पर 10 मिनट्स लेता है। सो 10 20 10, ये ऐसा हमारे पास में क्या बोलेंगे प्रोसेसिंग टाइम दिए हैं। दिस प्रोसेसिंग टाइम आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ऑर्डर। मतलब जॉब 1 को फिर आप बी पे पहले परफॉर्म कराओ या सी पे पहले परफॉर्म कराओ या ए पे पहले परफॉर्म कराओ, ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये प्रोसेसिंग टाइम उतना ही रहने वाला है। ओके, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म। नेक्स्ट अजम्पशन इज देयर इज ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप की सिर्फ और सिर्फ एक मशीन हमारे पास में अवेलेबल है। हर एक टाइप की, किसी भी कितने भी टाइप रहने दो, पर उस टाइप की कितनी मशीन्स हमारे पास में अवेलेबल है, एक मशीन अवेलेबल है। ये हमारा अजम्पशन है। आगे कुछ और अजम्पशंस हम देखेंगे। अ जॉब इज प्रोसेस्ड एज सुन एज पॉसिबल बट ओनली इन ऑर्डर स्पेसिफाइड। जॉब जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही अगले मशीन पर भेजा जाएगा या उस मशीन पर नया जॉब लगाया जाएगा, बट ये एज सुन एज होगा, बट ये होगा हमेशा हमारे गिवन या फिर जो ऑप्टिमल ऑर्डर हमने डिसाइड किया है इस ऑप्टिमल ऑर्डर में ही। ओके, मतलब पहला जॉब अगर ए है और दूसरा जॉब अगर बी है तो पहले ए जॉब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बी जॉब आने वाला है। ओके, ये अगर हमने ऑर्डर डिफाइन कर दिया है तो। ओके, इसके बाद में है ऑल जॉब्स आर नोन एंड रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग बिफोर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन बिगिंस। हमारे पास जितने भी जॉब्स हैं, एक जॉब जब हमने मशीन पर लगाया तो उसके बाद जो जॉब आने वाला है वो हमारे पास में रेडी है लगाने के लिए। ऐसा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर पहला जॉब नंबर 1 जॉब मशीन ए पर चल रहा है और उसके बाद नंबर 2 जॉब आने वाला है। ओके, तो नंबर 2 जॉब हमारे पास में जब तक ये मशीन पर नंबर 1 चल रहा है तब तक आके अवेलेबल है। ओके, उसके बाद में है द प्रोसेसिंग टाइम्स आर ऑन डिफरेंट मशीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जॉब इन विच दे आर प्रोसेस। जो प्रोसेसिंग टाइम है मशीन के ऊपर का वो इंडिपेंडेंट है जॉब के, ऑर्डर ऑफ द जॉब के। द टाइम टेकन बाय द जॉब्स इन मूविंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज़ वेरी निग्लिजिबल एंड इज़ टेकन एज इक्वल टू ज़ीरो। जो भी वक्त हमें जॉब को एक मशीन से दूसरे मशीन पर मूव करने के लिए लगेगा वो निग्लिजिबल रहेगा और उसको हम क्या करेंगे एज इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर करेंगे। और ये है हमारे कुछ बेसिक एजम्पशंस ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा पहला केस स्टडी करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर का एक एग्जाम्पल भी हम लेने वाले हैं। सो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। ये थेरोटिकल पार्ट है, इसमें के एजम्पशंस आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। और कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। आप घर पे रहिए, प्लीज़ सेफ रहिए। जो जो इंस्ट्रक्शंस हमको गवर्नमेंट से आ रहे हैं वो प्लीज़ फॉलो कीजिए और आप जो हाइजीन है वो प्लीज़ मेंटेन कीजिए और प्लीज़ 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 घर से बाहर मत निकलिए प्लीज़। थैंक यू।